سب سے پہلے خبر یہ کہ صدر اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ خیبر پختونخوا مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہیں لیا گیا، الیکٹورل کالج مکمل نہیں، مخصوص نشستوں پر حلف برداری تک الیکشن ملتوی کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ رابطے کے باوجود اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے حلف برداری کا انتظام نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے 25 مخصوص ارکان کی حلف برداری نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپوزیشن کے مخصوص نشستوں والے ارکان کی حلف برداری نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اپوزیشن کے غیر قانونی مخصوص ارکان کو کسی صورت حلف اٹھانے نہیں دیں گے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ سیٹس اپوزیشن کو دی جا سکتی ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ کہیں پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی ریشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو کس طریقے سے انہوں نے ہماری سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی؟ چلو ہمیں نہیں دی جا رہی تھی، عدالت نہیں دے رہی تھی، لیکن کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جب ان کا آئین کے مطابق ان کا رائٹ ہی نہیں ان سیٹوں کا۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور عدالتی حکم کے باوجود حکومت کی ہر دھرمی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک قیدی کے ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، یہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں۔ الیکشن نہیں ہو رہی حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ کورٹ کا ڈیسیشن ہے، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیشن ہے کلیئر کٹ۔ یہ لوگ نہ کورٹس کو مانتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں تو قیدی نمبر کیا ہے وہ نام مجھے یاد نہیں ہے، اس کے ڈائریکشن کو مانتے ہیں۔ اسپیکر صاحب جو ہے وہ بھی اسپیکر کے بجائے عمران خان کے ٹائیگر بن چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ سیم صاحب بھی ٹائیگر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ سے سینٹ کی 12 نشستیں پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ سندھ اسمبلی آمد پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہوئے انہوں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ 12 سیٹس جیتیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن نامینیشن بھرے جا رہے تھے آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم کتنی سیٹیں جیتیں گے، میرا جواب تھا 12۔ باقی جو مقابلہ کرنے بیٹھے تھے وہ تو سارے مگر 12 میں تو کہہ رہے ہیں کہ 11 آپ کی ہے اور ایک تو ایم کیو ایم کی ہے اور ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ واقعی فیصل واڈا بھی آپ کا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، 12 سیٹیں جو 12 میں نے کہے تھے 12 کے 12 میرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں خان صاحب اور بی بی دونوں ٹرسٹیز ہیں، ٹرسٹیز کبھی مالک نہیں ہوا کرتے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کے اپنے گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ کو کوئی لاس نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی مفاد کی کوئی چیز نہیں لی ہے۔ یہ بھی ایسا بیس لیس ہے جس طرح کل آپ لوگوں نے دیکھا نیب نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ توشخانہ کا کیس سسٹینیبل نہیں ہے اور وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے سینٹنس۔ اسی طرح یہ بھی اس سے زیادہ بیس لیس کیس ہے۔ یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے یہ آئیں گے یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آج خان صاحب کے ساتھ ججز کے لیٹر پہ بھی بات ہوئی ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرح اس کو کنوکشن ہوئی ہے 14 سال۔ اس کیس میں بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ آئسولیشن میں ہے، گھر میں اکیلی ہے، اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے سلو پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے۔ اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار
इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बराए मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिज़र्व सीटों के फैसला हो जाए, रिज़र्व सीटों के लोग ओथ उठा लें, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमज़ा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया। 9 मई को या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दामात करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज़। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्टम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी।
ये बताया आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतज़ाद हैं। नहीं, बयान मुतज़ाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका ख़दशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है, और जो बंदा इफ़ेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने ख़ुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्ज़े में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्ज़ाम लगा है अमेरिकी। पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं, अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाअल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब ने कहा अगर बिगड़ा बीबी में कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया आगे चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखें, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्ज़े में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होने चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, आपने उसको बनीगाला में रखा। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 मई तक तलब कर ली गई हैं। ज़राए का कहना है कि 24 जून तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ, बताइएगा इस प्रोसेस से मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये पाकिस्तान ने याद रहे कि IMF के अगले प्रोग्राम में जाना है, उसके IMF की तरफ से एक शर्त है कि PIA की निजकारी इसी माली साल के दौरान यानी कि 30 जून से पहले मुकम्मल की जाए। लिहाजा इस पर तेजी से अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान ने फौरी तौर पर निजकारी कमीशन ने फैसला किया है कि PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें जो हैं 3 मई तक वसूल की जाएंगी। 3 मई के बाद जैसी दरखास्तों की वसूली की तारीख खत्म होगी, जल्द से जल्द इन दरखास्तों की स्क्रूटनी की जाएगी। जो दरखास्तें मेरिट पर होगी उनमें से फिर PIA की बोली के लिए एक तारीख मुकर्रर की जाएगी, जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में ही किसी वक्त होगी। जो कामयाब बोली दहिंदगान होंगे उनको 24 जून से पहले जून के पहले हफ्ते में मुकम्मल करके बोली का प्रोसेस, जो कामयाब बोली दहिंदा होगा उसको 51% PIA के शेयर हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे। निजकारी से कमीशन को जो मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक रवां माली साल 2030 में पाकिस्तान PIA ने 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया, जबकि सालाना 50 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को बैरून मुल्क 34 मुख्तलिफ ममालिक लेकर जाती है। PIA के पास इस वक्त 97 मुनाफा बख्श इंटरनेशनल रूट्स हैं, जो कि एयरलाइन के साथ ही मुंतकिल होंगे कामयाब बोली दहिंदा को। एक हफ्ते में PIA 260 परवाजें ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में फ्लाई सफर करने वालों में 5.5% का सालाना इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। आम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ ने ज्वाइन किया है। अवैस, ये क्या मामला है? जी देखिए, ऐसा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनको मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, और अदालती ज़राए ने ये बताया है कि एक जज के स्टाफ ने जब खत खोला तो उसके अंदर एक पाउडर मौजूद था और धमकी आमेज खत था जो टाइप शुदा था। ये जो खतूत है तमाम जजेस को मौसूल हुए हैं। इसमें खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। रेशम नामी खातून ने अपना एड्रेस लिखे बगैर ये खतूत तमाम जजेस को अरसाल किए हैं। 2 जजेस के जो स्टाफ हैं उनकी जानिब से ये खतूत खोले गए थे, और जब ये सूरत हाल सामने आई तो फौरी तौर पर फिर इस बात को कम्युनिकेट किया गया बाकी जजेस के। तो इस मामले को अब देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफ।